इनको इनकी भी पात्रता नहीं थी, उसके बाद भी लॉर्डशिप वी हैव मैडम ही इज नॉट बेगिंग बिफोर यू, लॉर्डशिप डेफिनेटली व्हाटएवर इज द पात्रता वो इसको चाहिए. द ऑनरेबल कोर्ट डोंट ट्रीट द एम्प्लॉइज टू बी बेगर्स ओनली. वेयर इज द ऑफिसर? कौन है ऑफिसर? है कोई करिंदा है ऑफिस का? डॉक्यूमेंट इज नॉट रीडेबल. हाउ दिस ऑफिसर हैज ट्राइड टू मिसलीड द कोर्ट. 20,000 जमा कराने से भागे क्या आप भी? 20,000 जमा करा दिया, चलने दो. नेक्स्ट टाइम ये केस आएगा, नेक्स्ट टाइम इसका तो फैसला आज होगा. नेक्स्ट टाइम भी इसी केस को चलाओगे आप. सो यू विल हैव टू कैलकुलेट द टोटल अमाउंट देयर आफ्टर. Yes, your lordship. How you have calculated? My humble submission is, your lordship, ये 2011 में रिटायर हो गए हैं, your lordship. After that 2016 में नई पॉलिसी आई है which my learned senior is asking for. तो it is not applicable on him. You have not granted 24 years benefit based on 24 then. Your lordship, my senior is correct on quoting 1985, your lordship, because the table states ये regular employee नहीं थे, इसलिए फिर भी हमने back में जाके 1973 से लेके 1985 कहाँ दिया आपने 73 से? your lordship may come to the annexure C5, your lordship. Yes, C5. Yes, your lordship. इनका सेवा में भर्ती का दिनांक है 29/9/1973, your lordship. Next कॉलम सेज सेवा निवृत्ति का दिनांक 30/4/2011, your lordship. इनके 12 वर्ष पूर्ण हुए 29/4/1985, your lordship. Since 1973 to 1985, the very minimum amount was 40 to 45 rupees only, your lordship. आफ्टर दैट इनके जब 24 साल पूरे हुए तब जाके पूरा कैलकुलेशन 74,421 हुआ, your lordship. Where are those calculations? Your lordship, the officer from PHE Jabalpur is available. So that officer has to come to the court in order to simplify the calculation part. He gave me this very document. No, the date I will not give. See the last order. Yes, your lordship. He gave me this particular document, and as per the instructions. Just to confuse the court. No, your lordship, but my humble submission is कि इनकी भी पात्रता नहीं थी, उसके बाद भी your lordship we have. Madam, he is not begging before you. Yes, lordship, definitely. Whatever is the patrata, वो इसको चाहिए. The honorable court. Don't treat the employees to be beggars only. Definitely not, your lordship. Your lordship. That you have given something more than the entitlement. Don't give. As per they are not begging before you. He was a time scale keeper. Legal entitlement you are supposed to give. Yes, your lordship. He was not a regular employee, and therefore the notification came in 2016, your lordship. 2011 तक उनकी retirement. Madam, what was the order passed by the writ court? Whether that has been complied with or not? Yes, your lordship, that has been complied. Let us see the manner in which that order has been complied with. Despite 3 orders, 1 by me, 2 orders by the coordinate benches. Yes. So how you have calculated it and which head you have deposited? Head you are not disclosing. In which head you have deposited that amount? And how that amount was calculated? He would be the best person to. Where is the officer? He's present, your lordship. कौन है ऑफिसर? है कोई करिंदा है ऑफिस का? He is the junior officer, your lordship. His presence is not required. Who is the contemner here? This is contempt, madam. Yes, your lordship. He is representing his department, your lordship. If supposing contemner is to be put to terms, he will tolerate all this rigor of the observation? Definitely not, your lordship. पता है आपको कुछ केस के बारे में? कैसे कैलकुलेशन की है 24 साल की बेस पे? सर ये कार्यभारित कर्मचारी हैं हमारे यहाँ, इसमें कार्यभारित कर्मचारी के लिए ये पॉलिसी है ही नहीं देने के लिए, सिर्फ ड्राइवर जो वाहन चालक। आप ऑर्डर जो हुआ है, ऑर्डर को डाइल्यूट इसके बेस पे करेंगे। ऑर्डर क्या था? न्यायालय के आदेश का हमने पालन किया और दो दिन। वो न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए आपने अमाउंट को कैसे कैलकुलेट किया है वो बता दें मेरे को तो बस। कैसे कैलकुलेशन की है आपको 12 साल और 24 साल के बेस पे वो समझा दे मेरे को। और कहाँ है कैलकुलेशन? वो कैलकुलेशन है, देखेंगे जी हमने पूरा दिया है, लेकिन इसमें साफ नहीं है अपना बना से यहाँ तक पूरा दिया है। 1999 में पहले दिया 3500 350, फिर 1904 में दिया है 3580, ऐसे बढ़ते क्रम बढ़ते ये 2010 तक कितना हो गया? ये हो गया 12 साल के कंप्लीट होने पे तो हो गए 8,960 रुपए का स्केल। हाँ तो 74,000 कैसे कैलकुलेट किए वो समझाएंगे मेरे को? सर ये जो है हम लोगों ने कैलकुलेट हमारा जो किया है इसमें समझ में नहीं आ रहा है। आगे तो दिख ही कुछ नहीं रहा, अगले पेज पे तो क्या कैलकुलेट दिखाएंगे आप?
It's so dim, not readable even. And registry has not objected to it. Registry has not objected to to page 14. No, Your Lordship, not. Not objected. No objection was raised. बुलाओ जी रजिस्ट्री वालों को, पढ़ के बताएं मेरे को ये क्या एंट्री लिखी है. See the entries. These are the entries on page 14. कौन पढ़ेगा इसको? No true copy was attached. Typed copy नहीं है इसके साथ. No type copy was attached, Your Lordship. And registry has cleared it. IA was filed. Yes, Your Reply was filed. Lordship. Reply was filed. And that has been taken on record. बोलो ना एक बार. मैग्नीफाइंग ग्लास लेके आए थोड़ा. 14 नंबर पेज आपके पास है ये रिप्लाई? मतलब 14 नंबर पेज है। पढ़ना एक बार. हाँ, एंट्री और पढ़ना ये. जो इनका पेज नंबर 13 है, नहीं, ये- 14 नंबर पाए ना हाँ, पहले तो आप. इसमें इन्होंने लिखा है कि कृपया पूर्व आपत्ति का निराकरण किए जाने के पश्चात ही प्रकरण सत्यापन हेतु प्रस्तुत करें। और पेज नंबर 13 में नहीं, लास्ट 14 के आगे भी पढ़े ना, ये तो एंट्री है आगे तो. आगे ये एंट्री कुछ भी समझ में नहीं आ रही। वही मैं पूछ रहा हूँ, आपको कभी समझ में आ गई हो? नहीं, संभव मेरे को तो आई नहीं. क्लियर ही नहीं है। आप मैडम पढ़ के बताइए लाइन. Definitely not. It's not visible. आप पढ़ सकते हैं इसको? This is आप पढ़े एक बार इसको, जो आपने डॉक्यूमेंट लगाया 14 नंबर पेज पे. ये सिग्नेचर 13/6/2023 तारीख के बाद में क्या लिखा है? पढ़े एक बार, कितना अमाउंट कैलकुलेट किया है? एक लाइन ही पढ़ दें, 13-14 लाइनें हैं. नहीं समझ। has been mentioned in the service records, Your Lordship. 1973 के documents हैं. मैडम, you are relying upon a document which is not readable even. Yes, Your Lordship. If document is not readable, Yes, Your Lordship. how this officer has tried to mislead the court on the basis of entries made on page 14? Definitely, the intention was not to mislead, Your Lordship. The records are very old, Your Lordship. 1973. Madam, how you have calculated 74,000 Your Lordship. only on the basis of these entries? Then These entries are not legible. we'll seek for other the relevant additional records, Your Lordship. See the last Please, order. Last order. Read the last order. Adjournment was granted subject to 20,000 cost, We have paid, Your Lordship. That time. and still needful has not been done. Your Lordship, the head was asked on the basis we have filed the documents regarding the head, Your Lordship. Under what head he was paid, Your Lordship. रजिस्ट्री को बुलाओ एक बार, ये कैसे क्लियर किया है? फोन करती है आप उसको बताना, रजिस्ट्री वाले को पढ़ के बताएंगे 11 लाइन क्या लिखी है. Neither the petitioner is in a position to read this document, nor the respondent, and nor the court even. Officer who is present in court, he is not in a position to read it even. And you want the court to believe all these things? The officer is in contempt. Instead of attending this case personally, he has sent this fellow. एंड पेज नंबर 6 में भी ये आधा कटा हुआ पेज है। पेज नंबर 6 एडिशनल रिप्लाई करी थी मैडम। लॉर्डशिप, उसके जस्ट नेक्स्ट पेज में फुल पेज लगा हुआ है उसका. Page number 6 is half page. सर 7th पेज उसी का फुल पेज उनको तो नहीं दिया होगा ना 7th पेज. दिया हुआ है. Wait after 10-15 minutes. यस भैया ये है ना, कोई लेंस लूंस आपके पास हो तो ये पढ़ के सुनाए. ये आपने पास तो कर दी रिप्लाई. पेज नंबर 14 पे वकील साहब ये कह रहे हैं कि हमने तो ये भी पढ़ रहे हैं. वो आपको यदि समझ में आ जाए तो मेरे को बता देना ये क्या चीज लिखा हुआ है. ये सारी चीजें हैं. ये पास कैसे कर दिया डॉक्यूमेंट आपने? वापस बन रहा है. क्या लिखा है ये सिग्नेचर के बाद में? हाँ, वो तो कह रहे हैं कि रजिस्ट्री वाले को आता है पढ़ना. रिस्पोंडेंट का वकील तो ये कह रहा है कि रजिस्ट्री वाले पढ़ देंगे इसको आगे, क्योंकि आपने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया तो आपको ये रीडेबल है आपके हिसाब से, तो पढ़े इसको. इसलिए बुलाया आपको मैंने. पढ़े, 11-12 लाइनें हैं. ये एक लाइन ही पढ़ के दिखाएं इसको पहले तो. अरे क्लियर कैसे होगी रिप्लाई जब ये ऐसा डॉक्यूमेंट हिंदी में वर्नाकुलर लगा है, इसकी ट्रू कॉपी साथ नहीं लगी यार. ये तो कुछ भी समझ में नहीं रहा इसके ऊपर तो. वो तो ये कह रहे हैं कि रजिस्ट्री वाले पढ़ देंगे इसको, एक्सपर्ट आदमी है.
इसलिए आपको बुलाया है कि आप एक्सपर्ट हो, मेरे को पढ़ के बता दें। पढ़ो, रिकॉर्डिंग करो जी, ये पढ़ के बताएंगे। आपने तो पास कर दिया, वो क्यों लगने देगा डिफेक्ट अब जो कोर्ट में आ गया केस? एडिशनल रिप्लाई फाइल हुआ है ये केस 20,000 कॉस्ट के बाद डेट मिली थी उसको, 20,000 कॉस्ट जमा कराई है उसने पहले, और फिर ये रिप्लाई आया रिकॉर्ड पे, और ये रिप्लाई भी विद अनेक्शर है, और वो अनेक्शर रीडेबल नहीं है। Registry has cleared it on seeing the receipt regarding deposit of 20,000. 20,000 जमा कराने से भागे क्या आप भी कि 20,000 जमा करा दिया चलने दो? किसने क्लियर की है फाइल ये? डॉक्यूमेंट क्लर्क को डायरेक्शन हैं? डॉक्यूमेंट क्लर्क ने दिया है ये तो एक्सेप्ट हो चुकी, अब क्या एक्सेप्ट नहीं करेंगे इसको आप? नेक्स्ट टाइम ये केस आएगा, नेक्स्ट टाइम इसका तो फैसला आज होगा, नेक्स्ट टाइम भी इसी केस को चलाओगे आप? इसका तो फैसला आज होना है, नेक्स्ट टाइम का क्या मतलब है? क्या किया जाए? फर्दर कॉस्ट तो 1 लाख से कम का मतलब नहीं, क्यों 20,000 दे के पैसे 20,000 जमा कराए उन्होंने, फिर डेट मिली थी इनको लास्ट टाइम। आज इस केस में यदि इनकम्प्लीट है तो फर्दर कॉस्ट का तो प्रोविजन पहली बात तो है नहीं, कंटेम्प्ट है ये, वायलेशन ऑफ द ऑर्डर। और यदि जाती भी है तो विल पे, दिस इज द इशू। आप ऐसे कैसे लाइटली ट्रीट कर सकते हैं कंटेम्प्ट के रिप्लाई को, particularly when that reply is being filed under the orders of the court with deposit of cost of which 20,000? Should I write something against the office also? आने दो उसको, वकील साहब को, जाओ आप। I am not taking any action, but mind it in future, no such document is cleared.